So I was recommended for Air Force from NDA. फिर वो सपना बन गया कि अब Air Force में जाना है, पायलट बनेंगे. So जैसे साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए उस टाइम पे मैंने फिर आपका कोर्स किया था. Before the 2023 अटेम्प्ट. I think तभी लॉन्च हुआ था. हाँ तभी हुआ. Undoubtedly it was tough. कभी-कभी सुबह बेड पे से निकलने का भी मन नहीं करता था. I'll say I cried a lot in those 3 months कि क्यों नहीं निकला prelims. You talk a lot about mental health and it's true that this exam takes a toll on your mental. उस टाइम पे ही मैंने आपका Write Smart और GS3 मॉड्यूल लिया था. I wrote the PYQs with you in the Write Smart. आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया था उससे थोड़े थीम बेस्ड नोट्स बना ले रहा था, शॉर्ट नोट्स, जो आई थिंक इस बार हेल्प किए उन चीजों में स्पेसिफिकली जिनका मेरे को डायरेक्टली कोई सोर्स नहीं मिला कि मैं शायद फेलियर पचा लूं बट रिग्रेट डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा आगे अपनी लाइफ में. मतलब आई कैन नॉट से टू माई चाइल्ड बाद में कि एक और अटेम्प्ट लिख दिया होता तो तेरा पापा IAS बन गया. Hello and welcome to Sunday Brunch with Toppers. Today my guest is Abhishek Sharma, who is All India rank 38 in this year's Civil Services exam. So Abhishek, firstly, thank you for being here. Thank you so much, sir, for giving me this. So this is just a podcast where we're not going to talk about your strategy, your way to approach the paper, your marks, your rank. We are going to talk about your story, your resilience, your consistency. So I want this to be just like a conversation, and whatever you feel is right, जो भी आपको जिसका भी नाम लेना है, जो भी आपको बात करनी है, please just feel free to communicate that, because this is just to share what you have felt throughout your years of preparation, not just what got you through or what has ultimately given you this great rank. Sure, sir. So how did you, let's start with your start with this journey. So आपने कैसे decide किया that you're going to come for the civil services exam, and which year did you start in? So the first time when I thought that I will go into civil services was 2018. Okay. So I was recommended for Air Force from NDA. That's wonderful. After I was recommended from SSB, and at that time I was preparing for JEE. Okay. So January में जब मैं recommend हुआ, I left the preparation. It was like फिर वो सपना बन गया कि अब Air Force में जाना है, पायलट बनेंगे and all that. Then in March the medicals happened. And due to minor medical issues, I became ineligible to join Air Force. Oh, okay. So again, वो 2-3 महीने I did not even prepare for JEE, और यहाँ से भी cut off हो गया. Then I got back into JEE preparation. But first time after getting rejected in medicals, I thought कि if I cannot become an officer this way, maybe that is the other way I'll try. तो तब पहली बार आया, but at that time I did not know क्या plan है, क्या करना पड़ता है बनने के लिए. Right. It was just a vague idea. Right. Then sir, in the second year of my college, I pursued computer science from NIT Bhopal. Okay. So in the second year, COVID happened. I came back home, and then I had the time to explore. तो मैंने थोड़ा सा explore किया. Then I thought, why not start the preparation? So December 2020 में I started with the preparation. Yeah. So you started in 2020 December. Right, sir. Right. So it's been a long journey, right? 4 and a half years. That's pretty long. ठीक है. Then you started the preparation, and then what happened? So sir, I still remember I started with Bipin Chandra. So I bought that book. I read it like a novel. I liked it. I really liked that book, the way it's written. Then I read it again. And then I shifted to other standard books. I did the first reading like I'm reading novels, just to get an understanding of the syllabus, what all we need to know. This was in 2021. Yeah. So and आप कॉलेज में थे इस टाइम पे? जी सर. So the classes were going online और बहुत ज़्यादा hectic नहीं था उस टाइम पे. एग्जाम से पहले पढ़ के हो जाता था, काम चल जाता था. वो तो हम सबको पता है, हमने कॉलेज कैसे क्लियर किया है. जी सर. तो बस फिर वही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चालू किया. तो सर तब मैंने क्या किया था कि बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया था. जैसे क्वालिटी है तो आई थॉट कि मुझे शायद 1 महीना लग जाएगा लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ने में, तो मैं 15-15 दिन के 2 स्लॉट रखूंगा. एक साथ 1 महीने में नहीं पढ़ी थी, तो 15 दिन में आधी, फिर उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया था. तो जो बड़े 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको 15-15 दिन आधा आधा करके, देन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, एंड देन आई केम बैक टू दैट. और उसके बाद वो सब छोड़ के अराउंड 6 मंथ्स के बाद, 6-7-8 मंथ्स के बाद आई लेफ्ट दैट. आई थॉट कि ऑप्शनल कर लेना अभी ज़्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन. सो कोचिंग है सर डायस फिजिक्स के लिए, DP वाजपेयी सर. तो मैंने उनका कोर्स लिया था, ऑनलाइन कोर्स. इन 4-5 मंथ्स मतलब मैंने एक्सक्लूसिवली फिजिक्स पढ़ी फिर अगले 4-5. तो आपने डिसाइड कैसे किया दैट यू विल टेक फिजिक्स एज योर ऑप्शन? Sir, during my JEE preparation, I really used to love the subject. Okay. मुझे नहीं पता था कि फिजिक्स ऑप्शनल के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, बट मुझे ये पता था कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है और जो भी पढ़ना पड़ेगा मैं पढ़ लूंगा. Right. तो so even in your college days, I'm sure physics was something. First year में I think we got some insight into what engineering physics is, quantum
फिजिक्स क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा इंसाइट मिला था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो आई थॉट इसके अलावा आई डोंट थिंक आई विल गेट अ चांस टू गेट बैक टू फिजिक्स अगेन, राइट। आई थॉट व्हाई नॉट टेक दिस चांस, है ना। तो मैंने वो लिया, थोड़े से क्वेश्चंस देखे तो मुझे फेमिलियरिटी लगी कि मैं ये कर लूंगा पढ़ के, तो देन आई टुक द कोर्स। शुरुआत में थोड़ा सा लगा सर उस कोर्स में भी कि सब कुछ नया है, बिकॉज ग्रेजुएशन बीएससी एमएससी लेवल तक का है सिलेबस फिजिक्स, राइट। तो थोड़ा नया नया लगा, बट द वे ही टॉट फिजिक्स गॉट इजियर एंड इवेंचुअली मार्क्स ही लेके आने थे। तो यूपीएससी के लिए पढ़ के थोड़ा सा प्यार कम ही हो गया सर फिजिक्स से, मैं ये बोलूंगा। एंड आई थिंक फ्रॉम द लव ऑफ द सब्जेक्ट इट बिकेम लव ऑफ मार्क्स। I think that's a trend that I think goes across. But all right, you were in 2021. I think you must be graduating by that time. 2022 में you must have graduated, and at that time you were also preparing. तो first attempt आपने कब दिया? Like when? 2022. I think it was on 5th June या फिर 28th May. One of these dates. Yeah. तो 2022 में दिया था मैंने first attempt. तो जब मेरा physics complete हुआ, I got back to my subjects, वो मैंने रिवाइज की एक बार। जिसकी स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल थी वो मैंने पढ़ लिया था। जिसकी नहीं थी उसमें कुछ भी करके हाथ पैर मार के थोड़ा बहुत जितना हुआ था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एज वेल, आई विल से इनकी कोई स्टैंडर्ड बुक्स उस टाइम पे मुझे नहीं पता थे, तो ये सब्जेक्ट्स मैंने काम चलाने के हिसाब से पढ़ लिए थे। 2022 के अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट। आई वुड नॉट से कि मैंने इनमें मेहनत नहीं की थी, वो भी गलत हो जाएगा बोलना। मैंने पढ़े थे, इतने पढ़े थे कि मैं क्वेश्चंस बना ले रहा था, बट स्टिल सर आई फ्लंक्ड 2022 का प्रीलिम्स। ओके, आई विल कम टू दैट कि क्या गड़बड़ हुई, क्यों नहीं निकला, जब इस वाले प्रीलिम्स की बात करूंगा। आई थिंक तो पहले ही बता देते हैं क्या गड़बड़ हुई और क्यों नहीं निकला। सर दोनों ही प्रीलिम्स में एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं कर रहा था वाज अटेम्प्टिंग लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नाउ पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस, बट व्हाट आई पर्सनली फेल्ट कि मेरी एक्यूरेसी कभी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती इस एग्जाम में। राइट। तो मैं 70 के आसपास अटेम्प्ट कर रहा था, एंड आई वाज हवरिंग अराउंड द कट ऑफ दोनों बार 70 to 80 के बीच में, जस्ट 2-3 नंबर से रह गया। हाँ जी सर, राइट। तो वही इशू हो रहा था। इस अटेम्प्ट में मुझे रियलाइज हुआ सर कि प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है आपकी, ओवरऑल स्मार्टनेस टेस्ट कर रहा है। तो आई थॉट आई फोकस्ड ऑन दैट एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड मोर इस अटेम्प्ट में। So also I'm sure your knowledge gets accumulated. That also happens. Right, मतलब वो over time वो knowledge जब combine होती है, that also plays a lot of role. Yeah. Right. So that aptitude is nothing but I think peripheral knowledge and your ability to link various things you have read. Right. तो उसके लिए आपको पढ़ा तो होना ही चाहिए obviously. Right. But again the more MCQs you solve, the better you get at it. ये भी एक है. So sir as a skill मैंने acquire करने की कोशिश की. This time I attempted 100 questions. अच्छा. I had decided that सभी mocks में मैंने वही practice की. I did that in the actual exam as well and it worked out. तो 2022 में when you did not clear prelims, what was going through your mind at that time? आपने college से you've been rejected from sort of rejected, medically rejected from NDA, and you've now like you know completed your graduation. आप पढ़ भी रहे हो, 2 साल हो गए हैं, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी? The first attempt दिया है, everybody is hopeful, and आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़े बिना गए होंगे, right? तो but you knew, I think prelims के 1-2 दिन बाद आपको समझ आ गया होगा कि मेरा prelims शायद नहीं clear होगा इस बार। तो what was the mindset then? तो सर उस टाइम पे I had some things, I'll say excuses, I'll say not excuses, पर मेरे पास थी कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया हूँ शायद इस टाइम। तो दुख था, लेकिन उतना नहीं था। आई थिंक तब ज्यादा होता जब मुझे लगता कि मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं निकला। तो जैसे मैंने बोला कुछ चीजों के स्टैंडर्ड सोर्सेज नहीं थे, कुछ गैप्स मैंने खुद छोड़ दिए थे प्रिपरेशन में कि यार एक क्वेश्चन ही तो आता है इसका, सोच लेंगे कौन से 100 क्वेश्चन करने होते हैं। दैट सर आई विल टेल यू इज अ स्लिपरी स्लोप, है ना। तो मैपिंग नहीं की थी मैंने, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, वो सब पोर्शन छोड़ दिया था। इंडियाज ड्रेनेज सिस्टम के ठीक है देख लेंगे, एक क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे। तो बहुत सारे गैप्स थे प्रिपरेशन में। तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि आई विल गिव माई सेल्फ अनदर गुड चांस, आई विल फिल ऑल द गैप्स, सब पढ़ लूंगा इस बार, कुछ ऐसा छोड़ूंगा ही नहीं रिग्रेट करने लायक। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। जिनके स्टैंडर्ड सोर्सेज नहीं थे पहले, उनके लिए देन आई गॉट सम सोर्सेज, जैसे साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए उस टाइम पे मैंने फिर आपका कोर्स किया था बिफोर द 2023 अटेम्प्ट। आई थिंक तभी लॉन्च हुआ था। तभी। हाँ, तो तब तक भी आई वाज नॉट श्योर कि कहाँ से पढ़ूं, कुछ जगह से पढ़ रहा था, बट फिर उसके बाद उसके लिए मैंने वो किया। इकोनॉमिक्स के लिए सर एक IAS हैं अक्षय सुनील अग्रवाल सर, उनकी यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है, तो वो आई थिंक इज अ वेरी गुड सोर्स। तो वो इकोनॉमिक्स मैंने वहां से सॉर्ट आउट किया। तो मुझे लगने लगा कि हाँ थोड़े स्टैंडर्ड सोर्सेज, मेरे नोट्स बन चुके हैं सब्जेक्ट के, एंड नॉलेज बेस भी बढ़ गया है, मैंने गैप्स फिल कर लिए हैं। देन अगेन आई वाज होपफुल 2023 अटेम्प्ट में। नहीं, बट लेट्स टॉक ऑफ द टाइम आफ्टर 22 प्रीलिम्स। एक बार उसकी बात करते हैं कि आप प्रीलिम्स दे के आए हो एंड आपने प्रीलिम्स के लिए लेट्स से 50-60% पढ़ा है। आई थिंक 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पर कह रहे हो। फर्स्ट कि एक तो आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक यू कैन जस्ट
रीड थोड़ा बहुत ऊपर से और बात बन जाएगी कि वो ऐसा प्रीलिम्स अब आई थिंक बचा ही नहीं है. जी सर. राइट, इवन इफ दे आस्क्ड, जैसे इस बार भी if they have asked some topic, it's not like they have asked what is Article 6. They have asked Article 6 explains both market and non-market mechanisms in terms of climate sustainability. Right. They have not asked what is virus. They have asked can virus change the cellular transcription of any organism. So you need clarity. हाँ, तो you need depth. I think वो तो काफी evident चीज है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप छोड़ के जा सकते हो. जी. Right, जैसे इस बार, जैसे आप बता रहे हो कि इस बार नेशनल पार्क्स उन्होंने नहीं पूछे, बट डज दैट मीन वो अगले साल नहीं पूछेंगे? अगले साल हो सकता है वो 5 पूछ लें. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग यू कैन लीव. बट प्रीलिम्स के बाद आपने किया क्या? मतलब जैसे आपका यू न्यू के शायद 60-70% तैयारी हो गई है, तो क्या इमीडिएटली प्रीलिम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, या व्हाट डिड यू लुक फॉर? उस टाइम पे माइंडसेट क्या था? सो सर आई न्यू दिस. उस टाइम पे मुझे, मतलब मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बोलूंगा कि आज नहीं तो कल आई विल क्लियर प्रीलिम्स. ओके. तो दोनों ही प्रीलिम्स के बाद आई विल से आई केम टू दिल्ली टू राइट टेस्ट सीरीज फॉर मेंस. तब तक मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट 2022 की बात कर रहे हैं. तो मैं दिल्ली आ गया था. आई बॉट डायस की टेस्ट सीरीज फिजिक्स की, क्योंकि उसका सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका था एंड आई वाज श्योर कि मैं उसके क्वेश्चंस लिख लूंगा. और फिर मैंने और भी टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दिया. तो आपने सोच लिया था दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस? नॉट ओनली प्रिपेयर फॉर मेंस, मैंने सोच लिया था सर आई एम गोइंग टू गिव दिस मेंस. जैसे ही ऑनलाइन आएगा अपने घर पे बैठ के 3 घंटे में आई एम गोइंग टू राइट ऑल द पेपर्स, ऑप्शनल के भी. तो सर आई प्रिपेयर्ड लाइक दैट. आप उसी साल मेंस दे रहे हो, 2022 में ही आप मेंस दे रहे हो? हाँ जी सर. कि अगर दे रहा होता तो मैं कैसे प्रिपेयर करता. तो अगर मैंने मेंटली अपने दिमाग से हटा दिया था एंड आई वाज लाइक मैं मेंस दे रहा हूँ, क्योंकि सर रिजल्ट निकलने से पहले ही मैं आ गया था एंड एज आई सेड वो बॉर्डर पे था, तो इट वाज स्टिल अ चांस कि मेरे को सच में देना पड़े. आई थिंक अभी भी बहुत सारे लोग उस फेज में हैं, तो आई जस्ट से वही करो जो मैंने किया. आई जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन. फिर आप छोड़ोगे वैसे भी नहीं, तो 3 महीने के लिए आई वर्कड एक्सक्लूसिवली फॉर. तो आपने सोच लिया कि प्रीलिम्स में जो भी हो रहा हो, इवन दो गैप्स हैं एंड यू न्यू के गैप्स हैं 2022 में, आपने कहा कि ओके आई विल जस्ट प्रिपेयर एज इफ आई एम गिविंग मेंस दिस ईयर. जी सर. एंड दैट मस्ट हैव बीन हार्ड टू डू, बिकॉज देखो एक क्या होता है कि अगर मेरे सामने मुझे पता है मेरा एग्जाम है, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू यू नो पुट इन दैट एफर्ट कि मुझे पता है पेपर आने वाला है, कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है. बट आपने वो कैसे मैनेज किया? आप पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो था नहीं, अल्टीमेटली आपने सोच रखा है, बट मीन्स था तो नहीं. जी. तो वो कैसे, हाउ डिड यू इंश्योर that you know you will put in that effort? Sir, undoubtedly it was tough. कभी-कभी सुबह बेड पे से निकलने का भी मन नहीं करता था. I'll say I cried a lot in those 3 months कि क्यों नहीं निकला प्रीलिम्स. Although सबको पता होता है कि हमने कमियां छोड़ी हैं, बट फिर भी जब आप इतना क्लोज होते हो तो आपको लगता है कि यार उस पार ही हो जाते हैं इस लाइन के. टफ तो था सर, बट अगेन करना तो था ही. आई वाज लाइक आज नहीं निकला तो हो सकता है अगले अटेम्प्ट में निकले, एंड आई डोंट वांट टू बी क्लूलेस तब कि क्या करना है. आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड. जब भी मेरा प्रीलिम्स निकले आई वांट टू बी इन दैट पोजीशन, क्योंकि सर बहुत लोग बोल चुके थे कि प्रीलिम्स बहुत ज्यादा डाइसी होता जा रहा है. यू नेवर नो आपका एक बार निकल के दोबारा कभी निकलेगा कि नहीं. दैट्स इवन ट्रू नाउ. आई थिंक इट हैज नॉट बीन मोर ट्रू एवर देन दिस टाइम. राइट. तो आई जस्ट वांटेड टू बी इन दैट पोजीशन कि जब भी प्रीलिम्स निकले आई विल गो ऑल द वे. और आई थिंक 3 महीने में उतना कॉन्फिडेंस आना इज इम्पॉसिबल. अगर मैं सिर्फ 3 महीने मेंस के लिए पढ़ूं, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, I cannot be that. इस बार तो जैसे they have not even given 3 months. हाँ. It is just 80 days. And after the result 75 I think. Right. तो मुझे लगता है कि वो तो almost impossible to do task लगती है मुझे. जी सर. I mean, what are your views on this? कि अगर मैं सिर्फ प्री और मेंस के बीच में मेंस पढ़ लूं तो मेरा काम हो जाएगा. Do you think that's okay? If you start from scratch, आपने आज तक ethics देखी नहीं है, internal security देखी नहीं है, आपने GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से कभी पढ़ी नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आई वोंट यूज द वर्ड इम्पॉसिबल, बिकॉज डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन लाइक मी आई थिंक इट्स अ ह्यूमंगस टास्क टू डू. राइट. एंड हाउ डिफरेंट डू यू फील, जैसे जब ये 2022 में आप थोड़ा याद करके बताओ, जब आपने फर्स्ट टाइम मेंस के लिए से पढ़ा होगा स्पेसिफिकली, हाउ डिफरेंट डिड यू फील वाज द प्रिपरेशन? डिड यू फील इट वाज द सेम कंटेंट, और डिड यू फील मेंस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एग्जाम? नहीं सर, आई रियलाइज्ड इट बिकॉज आई वाज राइटिंग टेस्ट सीरीज. आई रियलाइज्ड कि जो मेरे पास अभी ऑलरेडी मटेरियल है उससे तो काम नहीं बनने वाला. पॉलिटी के लिए जो मेरे नोट्स हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज इतने, उसकी रिटायरमेंट एज ये है, इसको ये अपॉइंट करता है, ये सब नहीं पूछ रहे हैं मेंस में. वो मुझे रियलाइज हो गया था. तो उस टाइम पे मैंने थोड़े थोड़े मेन स्पेसिफिक नोट्स, मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स जो होते हैं जो टेस्ट सीरीज में आते थे, उन पे पढ़ पढ़ के खुद से नोट्स बनाना चालू किया था. आई वाज लुकिंग थ्रू पीवाईक्यूज, आई वाज मेकिंग मॉडल आंसर्स टू पीवाईक्यूज, थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि मेरे पास टाइम था. जैसा आपने बोला, असली में तो देना नहीं था मेंस, तो मैं थोड़ा अच्छे से कर रहा था उन चीजों को.
तो वो प्रिपरेशन उस टाइम पे बहुत डिफरेंट थी और मुझे रियलाइज हो गया था कि मेंस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। नहीं, मुझे भी यही लगता है। आई थिंक वो थोड़े बहुत सिलेबस कॉमन होने के अलावा कुछ सिमिलैरिटी नहीं है दोनों पेपर्स में। आई थिंक कोई आसपास भी नहीं है दोनों पेपर, लाइक दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। एक में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है और एक में आपको पूरा पेपर भरना है जी। खाली पेपर जब आपके सामने होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट दैट मच कंटेंट एंड दैट टू इन वेरी लिमिटेड टाइम। मुझे तो लगता है इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पेपर। But sir, I'll say you will have to build upon what you have read for right. for No, you can't ignore it, हाँ. of course. तो वो आओगे, वो आपको अगर अच्छे से याद है तो it will be a plus point because मेंस में भी अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं right. which test your prelims knowledge. नहीं, and of course जैसे आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं या आपने DPSPs याद किए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज याद किए हैं, तो वो आप बहुत यूज कर सकते हो। तो ऑलराइट, 2022 में फिर क्या आपने दिया एक्चुअली मेंस? जी सर। अच्छा दिया, ओके। एंड व्हाट वाज दैट? घर पे बैठ के? जी सर, घर 3 घंटे में? 3 घंटे में। कैसा था वो एक्सपीरियंस? सर आई थिंक आई स्टिल हैव दोस आंसर शीट्स कहीं ना कहीं घर पर पड़ी होंगी। ओके। अभी मैंने देखी भी थी कुछ दिन पहले। तो आई रोट वेरी बैड आंसर्स। अच्छा। बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिखे थे, पर मैंने पेपर भर दिया था। दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर मी। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे क्योंकि मैं 3 महीने से, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग टेस्ट सीरीज, मैं 14-15 क्वेश्चंस ही सॉल्व कर पा रहा था 3 घंटे में। लिख के एटलीस्ट मैं स्टेज पे आ गया था कि मैं जो भी लिख रहा हूँ, कीपिंग द कंटेंट असाइड, मैं एटलीस्ट 3 घंटे में पेपर खत्म कर दे रहा हूँ। आई थॉट आई अचीव्ड समथिंग इन दीस 3 मंथ्स। उसके बाद मेरे को कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा अननोन नहीं लगा कि ये क्या पूछ लिया, मैं इसमें क्या लिखूं, वो वाली फीलिंग नहीं आई। तो दैट वाज अनदर अचीवमेंट फॉर मी। तो मैंने सारे पेपर्स लिखे थे। ऑप्शनल वाले तो आई गॉट देम इवन चेक्ड सर से। तो आई वाज लाइक क्रॉसिंग 200 वहां पे। तो आई वाज थिंकिंग कि आई वाज ऑन द राइट। एक एग्जाम का जो फियर होता है कि जब मैं मेंस देने जाऊंगा तो क्या होगा, आई थिंक वो आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्सटिंग्विश कर लिया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू वर नॉट एबल टू गेट पास प्रीलिम्स, यू हैड दैट फियर ऑलरेडी एक्सटिंग्विश्ड किसी लेवल पे। तो हाँ, ये तो आप यू वर इन अ वेरी गुड पोजीशन। अब आते हैं 2023 पे, इसी पोजीशन के बाद आते हैं 2023 पे। व्हाट वाज डिफरेंट इन 2023 इन प्रीलिम्स प्रेप? जी सर, तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, फर्स्ट वन वाज गैप फिलिंग। आई थिंक सितंबर अक्टूबर में मैंने मेंस लिखा था, उसके बाद 2 महीने में कुछ नहीं पढ़ा। देन 2 months यू टुक अ ब्रेक। हाँ ठीक है, तो फिर जनवरी 2023 से आपने दिसंबर जनवरी से आई स्टार्टेड। और थोड़ा जल्दी इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम नहीं निकला था एंड आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। राइट। तो फिर मैंने गैप फिलिंग स्टार्ट की। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट, क्लासेस, स्टैंडर्ड सोर्सेज से दोबारा नोट्स बनाए। पिछले साल मेरे को लग रहा था जिन नोट्स में जो कमी है वो दूर की। आई इवन डिस्कार्डेड सारे नोट्स किसी सब्जेक्ट के एंड मेड देम अगेन फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स, फ्रॉम अ मोर एग्जॉस्टिव सोर्स, आई विल से, जिससे क्वेश्चंस बन पाए। राइट। आई रोट द टेस्ट सीरीज 2023 के लिए। आई अलाइन माई प्रिपरेशन विद द टेस्ट सीरीज कि इतना इस टाइम में रिवाइज करना है, प्लस मुझे ये खत्म भी करना है। तो वो थोड़ा और वेल ऑर्गेनाइज और वेल प्लान्ड मैनर में हुई उस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एंड आई वाज फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट कि। तो कहाँ गैप्स थे उस अटेम्प्ट में? उस 2023 के लिए आई वाज एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ओके, ये 4 एरियाज आपने, ठीक है। और कैसे फिर फिल किया आपने वो गैप्स? एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए तो सर आपका कोर्स आया था प्रीलिम्स से जस्ट पहले, तब तक भी वो गैप था ही। आफ्टर दैट आई गॉट सम श्योरिटी कि चलो अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो क्वेश्चंस मैं कर लूंगा। राइट। देन फॉर इकोनॉमिक्स आई वो अक्षय सुनील अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट है YouTube पे। ओके, आई हैव नॉट सीन दैट, बट आप कह रहे हो कि आई विल आल्सो चेक दैट आउट। सर इट्स अ डिसेंट प्लेलिस्ट, लाइक मोर देन डिसेंट, आई से इट्स वेरी गुड, बिकॉज वो भी फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ही उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर समबडी हु डजंट नो इकोनॉमिक्स। उसके बाद सर ज्योग्राफी के लिए आई वॉच्ड सुदर्शन गुर्जर सर के लेक्चर्स। तो वहां से भी मेरे को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। मैपिंग एंड ऑल मैंने उनके साथ की, तो वो गैप फिलिंग मेरी हो गई थी एंड आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो अब 2023 के लिए आई थिंक दिसंबर से आपने प्रेप करना स्टार्ट किया। आई थिंक मई में या जून में प्रीलिम्स था। हाँ जी सर। तो मई लास्ट वीक और जून फर्स्ट वीक वही रहता है जनरली। तो अब आफ्टर गैप फिलिंग व्हाट हैपेंड इन द पेपर? अब आपने पूरा पढ़ लिया है, तो एक्चुअली दिस इज व्हाट आई नो योर स्टोरी, राइट? हमने बात भी करी है इस बारे में। जी सर। बट आई वांट एवरीवन टू नो दिस बिकॉज ये कॉमन है एंड आई थिंक दे नीड टू नो अबाउट योर रेजिलियंस। जी सर। मतलब आई थिंक जैसे आपकी रैंक इस बार टॉप 50 में आई है, लोगों को बस लगता है कि बस कोई ये बता दे क्या पढ़ा, बट कोई ये नहीं बताता द एफर्ट दैट यू हैव पुट इन, राइट? द मल्टीपल टाइम्स दैट यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। वो चीज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो फिर क्या हुआ पेपर में? सर 2023 का पेपर वाज अ बिट सरप्राइजिंग एज वेल। टफ भी, बहुत टफ। आई थिंक द टफेस्ट पेपर 2025 जितना ही टफ पेपर कह सकता हूँ। आई थिंक ओनली 2 वाले तो 2022 में भी आए थे क्वेश्चंस, बट 8 ही आए थे। लेकिन इस बार ज्यादा आए, 47 टफ भी थे क्वेश्चंस। तो
एंड सर पहले दोनों अटेम्प्ट्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, which was a strange thing for me कि प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट आपने जेई भी दिया है? जी सर। इवन देन? हाँ जी सर। मेरे मॉक्स 15 मिनट पहले खत्म हो रहे हैं घर पे, बट एक्चुअल प्रीलिम्स में मैं सेकंड इटरेशन कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा। तो दैट वाज अनदर इशू आई रियलाइज, जो मैं पहले अटेम्प्ट में शायद रियलाइज ही नहीं कर पाया कि मेरे साथ ये भी गड़बड़ हुई है। वो मेरे को दूसरे अटेम्प्ट में दोबारा से रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। आई थिंक वहां पर मतलब जस्ट यू कैन टेल मी इफ दिस इज ट्रू और नॉट, आई थिंक वहां पर जैसे बिल्कुल सिंपल चीजें भी होती है ना, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 सबको पता है, बट वहां पर बबल करने में ना जैसे वो 5 सेकंड में हो नहीं पाता वहां पे उतना ही, वहां पर फिर भी थोड़ा सा हेजिटेशन, एक बार डबल चेकिंग, सेल्फ डाउटिंग थोड़ा हो ही जाता है, बिकॉज इट्स अ बिग डे, इट्स अ लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट। तो आई थिंक वो भी एक रीजन रहता ही है कि हम वहां पर पेपर को इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाते। आई थिंक सर हाँ, जो आपने बोला किसी न किसी लेवल पे वही एक रीजन है कि वी वांट टू बी एक्स्ट्रा श्योर। तो मैं क्या करता था पहले 2 अटेम्प्ट्स में, माय स्ट्रेटजी वाज कि मैं एक इटरेशन करूंगा फिर ओएमआर भरूंगा। तो जब मैं ओएमआर भरने जाता था ना, आई स्टार्टेड रीडिंग द क्वेश्चंस टू बी एक्स्ट्रा श्योर कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी इन क्वेश्चंस में एटलीस्ट। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट इटरेशन 2 बार कर दिया एंड दिस वाज अ ब्लंडर पहले 2 अटेम्प्ट्स में। इसीलिए मैं क्वेश्चंस चाह के भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था 70-72 से ज्यादा। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो एक्चुअल प्रीलिम्स में मेरे से हुई। इट वाज हार्ट ब्रेकिंग सर, दूसरा प्रीलिम्स, बिकॉज टू बी इन द सेम पोजीशन अगेन, आप बॉर्डर पर लटक रहे हो डिस्पाइट वर्किंग ट्वाइस एज हार्ड। आपने मेहनत भी करी है जी, इज नॉट अ गुड फीलिंग। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं था खुद को देने के लिए कि मैंने ये गैप्स छोड़ दिए, या मे बी मेरे कॉलेज के एग्जाम्स थे इसलिए मैं लास्ट में अच्छे से नहीं पढ़ पाया। आई डिड नॉट हैव एनी एक्सक्यूज। तो जो फीलिंग शायद मैंने फर्स्ट फेलियर के बाद नहीं फील करी, वो इस बार मैंने पूरी फुल फील की के अब नहीं समझ आ रहा। तो उस टाइम पे व्हाट वाज योर रिएक्शन, मतलब कैसे यू डेल्ट विद इट एंड व्हाट डिड यू एक्चुअली फील एट दैट टाइम जब 23 का प्रीलिम्स नहीं निकला? देखो पहला वाला तो आई थिंक हम खुद को वो कह सकते हैं कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट था, खुद से पढ़ रहा था, फिर भी अभी जस्ट कॉलेज खत्म हुआ है। सेकंड वाले में तो ये है कि अब मैंने सब कर भी लिया, एफर्ट भी कर लिया, मेंस की प्रेप भी कर ली, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग थ्रू। वो फीलिंग क्या है? बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इन दिस बोट, a lot of very capable people like you will be in this boat this year, considering the paper that they have made, how subjective it was. तो I think ये उनके लिए बहुत important है कि आप बताओ कि आपको उस टाइम पे क्या लगा and how did you deal with it? Just the feeling that you felt. Sir, the first feeling was to give up. To be very honest. I was like निकल जाता है यहाँ से, अभी नवंबर दिसंबर में कैट होगा, let me prepare for that, let me get out of this journey. क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि यार मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं। उससे पहले तक भी आती थी, फेजेस आते थे जब कभी कभी थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कभी नहीं हुई गिव अप करने की जब तब हुई। उस टाइम पे सर आई थिंक फ्रेंड्स और फैमिली का जो सपोर्ट था, मुझे दोबारा याद दिलाना कि नहीं यू कैन डू इट, यू विल डू इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि इन जनरल आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन सर, borderline narcissist is what people tell me I am. तो फिर आप ये बात खुद बोल रहे हो, that tells me that you are not a narcissist, but ठीक है, maybe not sir, I won't comment on that, but I carry that confidence with me and I think वो शायद तभी से है जब से मैंने SSB क्लियर किया था without any preparation. तो तब से वो मैं लेके ही चल रहा हूँ अपने साथ। बीच में बस सेकंड प्रीलिम्स के बाद वो मुझे लगा था कि वो टूट गया है, वो कॉन्फिडेंस जो मैंने एक्वायर किया है अभी तक। एंड जस्ट आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, अगर कोई ये भी सोचता है कि नहीं मुझे कैट दे देना चाहिए या मुझे बाहर चले जाना चाहिए, तो वो गलत नहीं है। Definitely, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मतलब मैं आपको यू आर गोइंग टू गो इन द सर्विस नाउ, अभी आप लबासना जाओगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन देयर, नॉट एवरीबडी इज हैप्पी इन द सर्विस एंड नॉट एवरीबडी आउटसाइड द सर्विस इज अनहैप्पी। अल्टीमेटली एक जॉब ही है। तो अगर आपको ये भी लग रहा है कि नहीं यार आई शुड क्विट, आई शुड डू समथिंग एल्स, इट्स नॉट क्विटिंग, इट्स डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। एग्जाम देने का चॉइस भी आपका है, नहीं देने का भी आपका ही होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मतलब इट्स ग्रेट दैट यू कंटिन्यू, बट आई जस्ट वांट टू एंश्योर कि इससे ये मैसेज ना आ जाए कि नहीं हमें लगे रहना चाहिए। अगर किसी को लगता है दैट नो इट्स टेकिंग अ मेंटल टोल, इट्स नॉट इट्स नॉट मेंट फॉर मी, फाइंड अ प्लान बी। बिल्कुल सर। एंड आई थिंक उससे आप काम भी फील करते हो, लाइक इफ यू हैव द प्लान बी और आपकी एक कोई ऑल्टरनेट सॉर्टेड है, यू कैन कम बैक हियर अगर आपका बाद में मन करे तो, और नहीं भी करे तो इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं दुनिया में। राइट। आई थिंक सर आई मिस्ड वन पॉइंट अभी तक की हमारी बात में। सो आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम ऑल दिस व्हाइल ड्यूरिंग माय फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। ये बात मैंने करी नहीं। हाँ, सो मे बी दिस वाज नॉट द फैक्टर दैट आई वाज कंसीडरिंग, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं मन में लगता था कि प्लान भी सॉर्टेड है एंड आई वाज कॉन्फिडेंट अगेन कि कैट में निकाल लूंगा विद मिनिमल प्रिपरेशन, बिकॉज़ आई वाज गुड इन दोस सब्जेक्ट्स जो उसमें पूछे जाते हैं।
तो इसीलिए बट सर अगेन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वॉज नॉट प्लानिंग कि मैं 6 अटेम्प्ट्स लिखने वाला हूँ. आई वॉज नॉट प्लानिंग कि मैं अगला प्रीलिम्स भी लिखने वाला हूँ. तो टू बी वेरी श्योर उस टाइम पे मेरा प्लान भी सॉर्टेड था भी और किसी लेवल पे मैंने ढूंढना शुरू भी कर दिया था. And did that help with your mental sanity at that point after जब 23 का prelims आपका नहीं हुआ, but the fact that you had a plan B and you were thinking about CAT, did that give you some solace at that time and make you feel better at that time? Sir, at some level it might have, but I think वो दुख बहुत ज्यादा था तो वो सोलेस उसको ओवरपावर करके मुझे फील तो नहीं हो पाया. I'll be very honest with you. हाँ of course. But again जब मेरे को बोला गया या समझाया गया कि that I have it in me. I should give it one more try at least. I should at least write one mains and see if I'm made for this exam because mains checks a different part of your personality. तो मुझे थोड़ी बात समझ आई and then again after the 15-day break I started with the mains preparation. So it's a repeat of It must have taken a lot of effort यार उस टाइम पे. मतलब it did sir. मुझे तो सुन के ही लग रहा है that see I have just given 2 attempts and fortunately grace of God I have cleared prelims both times. तो मुझे वो I mean I can relate with that pain but I can't understand what it feels. तो मुझे तो सुन के लग रहा है like it must have been very difficult for you यार उस टाइम पे दोबारा से बैठ के कि no I will give prelims again, I will give you know prepare for mains again and to stay in the cycle for one more year. तो of course people must have said this to you but what were you feeling at that time कि कैसे you convinced yourself कि नहीं यार एक और बार मैं mains की preparation करता हूँ. Again sir being very honest मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी लेकिन मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं अगला प्रीलिम्स देने वाला हूँ. ओके. अभी भी मेरे मन में था कि नवंबर में कैट होगा, सितंबर में मैं मेंस लिखता हूँ घर पे अपने जैसे पिछली बार लिखा था. उसके बाद 2-3 महीने कैट की तैयारी करूंगा, कैट दूंगा, फिर देखेंगे निकल गया तो चला जाऊंगा IIM, अदरवाइज आई विल गिव द प्रीलिम्स. ऑनेस्टली ये फ्रेम ऑफ माइंड था बट अगेन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा था अपनी मेंस की प्रिपरेशन में क्योंकि आई नेवर लाइक आई डिड नॉट नो एट दैट पॉइंट कि क्या लिखा हुआ है इवेंचुअली होने क्या वाला है, मैं दूंगा नहीं दूंगा. इट वाज ऑल वेरी अनसर्टेन. तो आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप उस टाइम पे. भाई मुझे इस संडे को फिजिक्स के इस सब्जेक्ट का टेस्ट लिखना है. 7 दिन लेट मी स्टडी दैट, लेट मी नॉट थिंक कि मुझे अगला प्रीलिम्स देना है या नहीं. हो सकता है ये सारे एफर्ट्स फ्यूटाइल हों अगर मैं ना दूं प्रीलिम्स तो देन लेट इट बी. अभी मेरे पास वैसे भी कुछ और नहीं है करने के लिए. आई विल जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर कैट इन 3 months. तो अभी मैं और क्या ही करूंगा, ये नहीं करूंगा. तो सो आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस इन दैट वे. इट वाज वेरी डिफिकल्ट सर. बहुत सारे लो मोमेंट्स होते हैं. You talk a lot about mental health and it's true that this exam takes a toll on your mental health. 100%. And if you don't have people, like don't want to say that, but I was lucky in this regard that I had people around me who kept me sane in those moments, who again pulled me out of that hole जब Right. मैं उसमें घुसा. Right. I think उनका रोल बहुत ज्यादा है. जितनी सक्सेस मेरी है उतनी उन लोगों की भी है सर, जो उस मोमेंट पे मेरे साथ खड़े थे. Right. तो फिर से आप मेंस की प्रेप कर रहे थे और फिर से वही एटीट्यूड रखा कि सितंबर में मैं मेंस लिखूंगा. जी सर, एग्जैक्टली. एंड फिर लिखा उसके बाद. हाँ सर लिखा था. तो कैसे, हाउ डिड दोस 3 months go? What was the experience in those 3 months? Because अब तो must have been more difficult. And जो लास्ट टाइम 2022 में भी वो 3 months आपने लगाए और 23 में भी 3 months लगाए, what did you change and what did you make different this time? So to begin with, मैंने जब पहला पेपर लिखा, I was again back to 15-16 questions in 3 hours. जबकि आप पहले कर चुके थे. मैं जब खत्म किया था 2022 का मेंस की प्रिपरेशन तो मैं 3 घंटे में पेपर खत्म कर ले रहा था जैसे तैसे. लेकिन इस बार फिर शुरुआत में वही 16 क्वेश्चन से कर रहा था. एज लाइक कि मे बी वो कुछ काम का नहीं था वो सब, बट दिस टाइम द टाइम आई टुक फ्रॉम मूविंग टू 16 to 20 क्वेश्चंस वाज वे लेस. आई थिंक 3-4 टेस्ट के बाद आई वाज बैक टू 20 क्वेश्चंस. अगेन कॉम्प्रोमाइजिंग अ फ्यू क्वेश्चंस जो 10 मिनट में 3-4 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं लास्ट में. तो एक तो वो चीज थी कि द एफर्ट इट टुक टू गेट बैक टू दैट लेवल वाज लेस बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स आई पुट इन लास्ट ईयर. एंड सेकेंडली सर द क्वालिटी ऑफ माय आंसर्स वाज आल्सो इंप्रूविंग एज क्योंकि बहुत सारे गैप्स फिल किए थे. बहुत सारे मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी इस ड्यूरेशन में पढ़े थे मैंने. फॉर एग्जांपल एथिक्स सॉर्ट कर लिया था मैंने कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स बना लिए थे. तो वो टेस्ट जो मैं लिख रहा था एथिक्स का इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट व्हिच आई वाज राइटिंग ऑन द गो, दिस टाइम आई हैड समथिंग टू राइट. तो वो प्रिपरेशन मेरे को दिख रहा था कि बेटर हो चुकी है. एंड इफ गॉड वांट्स और मैं अगले साल जब भी प्रीलिम्स मेंस लिखूंगा तो आई थिंक इससे एक और लेवल ऊपर होके ही लिखूंगा. तो वो एक सर्टेनिटी मिली थी जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि अगर अगली बार लिखने का मौका मिला तो आई विल डू बेटर देन दिस बिकॉज दिस टाइम आई एम डूइंग बेटर देन द लास्ट टाइम. तो ये था सर. इसलिए वो 3 महीने डिफरेंट थे लास्ट ईयर से. कुछ लेवल्स पे सेम थे बट मोस्टली डिफरेंट थे. तो यू कुड सी इम्प्रूवमेंट हैपनिंग इन योरसेल्फ. जी सर. और आप फिर 2023 में
फिर से मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड दिस टाइम यू इवन एडेड कंटेंट. जी सर. तो वो आई एम श्योर वो मेन स्पेसिफिक कंटेंट रहा होगा. जी सर. जो मेंस के सब्जेक्ट होते हैं जो आपके शायद लास्ट टाइम थोड़े बहुत रह गए हो, उस चीज को आपने इम्प्रूव किया. जी सर. PYQs का क्या रोल लगता है आपको मेंस में? PYQs आई थिंक सर मेंस में सब जो बोलते हैं सिलेबस के कीवर्ड्स पे नोट्स बनाने हैं, बट लेकिन उन कीवर्ड्स पे आपको लिखना क्या है? राइट. Suppose urbanization is a keyword in the syllabus, but what about urbanization? So for that, I think PYQs बहुत important थे, and I think it's the right time to mention कि उस टाइम पे ही मैंने आपका Write Smart और GS3 मॉड्यूल लिया था after the 2023 failure, because उससे एक तो मेरे पास कुछ था करने के लिए, मतलब क्योंकि मैं बहुत खो ना जाऊं उस प्रिपरेशन में, क्योंकि उस टाइम पे मोटिवेशन सस्टेन करना बहुत मुश्किल था. I wrote the PYQs with you in the Write Smart. या आप 23 में लिख रहे हो? जी सर, 23 प्रीलिम्स के बाद. देन PYQs लिख रहा था, देन आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया था उससे थोड़े थीम बेस्ड नोट्स बना ले रहा था, शॉर्ट नोट्स, जो आई थिंक इस बार हेल्प किए उन चीजों में स्पेसिफिकली जिनका मेरे को डायरेक्टली कोई सोर्स नहीं मिला. तो GS3 मॉड्यूल में आई थिंक एग्रीकल्चर एंड इंटरनल सिक्योरिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो वहां से सॉर्ट आउट हुआ मेरा काफी लेवल तक. उसके अलावा आई डिड नॉट यूज एनीथिंग फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स. राइट. तो कंटेंट डेवलप हो गया मेंस के लिए काफी सारा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो गई थी. दीज वर द प्लस पॉइंट्स. जो मैंने टेस्ट लिखे थे इस वाले मेंस में, they were far better than the last time. I think whenever I'm talking to students also, I say there is a 3-step process. It's not like it has to happen in 3 stages, but all 3 has to be done. अगर आपको मेंस में अच्छा करना है कि एक तो कंटेंट, एक क्वेश्चंस की स्ट्रक्चरिंग, उसके लिए आई थिंक PYQs बेस्ट हैं, और एक टेस्ट. एंड आई थिंक यू आर शोइंग दैट यू हैव डन ऑल 3 ऑफ दीज थिंग्स 2022 के बाद भी, 23 के बाद भी. अगेन even though you were not making it through prelims, you are constantly focusing कि नहीं मैं means मुझे लिखना है. तो फिर क्या 2023 में भी आपने means लिखा? हाँ जी सर. लिखा घर पे. I still have those. और उतने टाइम में लिखा, 3 घंटे में, और ऐसा सुबह शाम करके लिखा GS1 GS2 या एक दिन में एक पेपर लिखा. तो आपने देखी होंगी आपकी कॉपीज, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस और उससे क्या फील हुआ आपको? सर एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं था, क्योंकि जब आपको कोई आसान क्वेश्चन दिखता है घर पे मेंस लिखते टाइम, तो योर ब्रेन गोज टू कि यार काश मैं एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहा होता. दैट ईयर फिजिक्स का पेपर वाज वेरी डूएबल. आई डिड वेरी गुड जो मैंने घर पे बैठ के लिखा था. तो आई वाज लाइक यार इस साल इजी आ गया, कहीं अगले साल कठिन आ गया जब मैं एक्चुअल में लिखूं तो काश मैं ये वाला मेंस अगर असली में लिख रहा होता तो फोड़ देता. ऐसे ये वाला माइंडसेट आ जाता है. आई थिंक सर इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी, क्योंकि यहाँ से रिग्रेट्स आना चालू हो जाते हैं कि मे बी आई डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ फॉर प्रीलिम्स, मे बी दिस वाज द चांस आई हैड टू क्लियर दिस एग्जाम, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा इस मेंस को वहां पे बैठ के. तो ये एक नेगेटिव साइड है घर पे बैठ के मेंस लिखने का. इफ यू कैन डील विद दैट, जिसमें मेरे को काफी टाइम लगा खुद को समझाने में कि अब भाई हो गया जो हो गया है, यू आर राइटिंग दिस फॉर नेक्स्ट ईयर्स प्रैक्टिस, तो वो नहीं हो पाया था. सर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व कर लो दिमाग में कि नहीं दिस इज द मेंस आई एम राइटिंग, तो उसका ये डाउन साइड तो होता है कि यू फील देन कि क्यों नहीं लिख रहे आप. नहीं, ये दिस इज अ न्यू थिंग, आई आल्सो कुड नॉट थिंक ऑफ दिस, क्योंकि जब आपको वहां फिर लगेगा कि यार मैं तो ये पेपर लिख सकता हूँ, देन अगेन द माइंड विल गो बैक टू प्रीलिम्स फेलियर. राइट. बट जो आपने कॉपीज लिखी 23 में और जो 22 में लिखी, लाइक आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन देम, केप्ट देम साइड बाय साइड एंड कंपेयर्ड देम आल्सो. डिड यू सी अ इम्प्रूवमेंट? लाइक वो कॉन्फिडेंस आपको आ रहा था कि नहीं यार अब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अब मेरी जो एक्चुअल वो मेंस वाला पेपर है, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज अल्टीमेटली इज मेड बाय अ कोचिंग, राइट, एंड वी कैन नॉट एम्यूलेट यूपीएससी, वो एक अलग लेवल पे हैं, दैट्स अ फैक्ट. तो जब आपने मेंस के पेपर देखे तो आई एम श्योर दैट वो है रियल डिफरेंस. तो 22 में और 23 में आपको आपकी कॉपीज में क्या डिफरेंस दिखा? सर सबसे पहले डिफरेंस कंटेंट में था, बिकॉज 22 में फॉर लाइक आई विल से 10-11 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 आई वाज राइटिंग ऑन द गो. मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं कर रखा है इस क्वेश्चन के लिए, जो भी आपकी पेरिफेरल नॉलेज से आपको याद आ रहा है. मेरे पास नोट्स नहीं है उस टॉपिक के जिस पे क्वेश्चन है. हाँ, जो मुझे याद आता जा रहा है, जो मुझे पता है, जो मैंने कहीं पढ़ा है, उसको बना के अपने आप लिख रहा हूँ. सेकंड मेंस जो घर पे लिखा उसमें मेरे पास उसके लिए नोट्स थे. अगर एग्जैक्टली वो नहीं था जो क्वेश्चन में पूछा है, तो भी कुछ तो था जिसको मैं ट्विस्ट करके या यूज करके उसका आंसर लिख पाऊँ. तो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट वाज कंटेंट, सेकंड वाज प्रेजेंटेशन. सो आई वर्कड वेरी हार्ड इन दिस इन 3 महीनों में ऑन माय प्रेजेंटेशन, कि कैसे आई कैन इंक्लूड मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, बिकॉज वंस कंटेंट गेट सॉर्टेड देन यू कम टू दिस. राइट. जब मुझे लगने लगा था कि मेरे पास कंटेंट हो गया आंसर्स में लिखने के लिए, हाउ कैन आई मेक देम बेटर, तब आई वर्कड ऑन दैट एक्स्ट्रा एज अल्टीमेटली. जी, तब आई वर्कड ऑन दैट प्रेजेंटेशन पार्ट. तो वो भी माइल्स बेटर था. आई थिंक सिर्फ उतना चेंज करने से ना आपकी कॉपी एकदम अलग दिखने लग जाती है. तो जहां पहले अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारे आंसर्स पैराग्राफ फॉर्म में लिख रखे हैं, कोई पॉइंट नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, जिसमें स्कोप है मैप का, वहां पे भी मैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है सिमिलर आंसर
अगर कंटेंट डेवलप हुआ है उतना ही प्रेजेंटेशन डेवलप हुआ है तो इट्स जस्ट 4-fold हो जाता है उसके। राइट, तो ये 2 इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा दिखते हैं मेरे को कॉपीज। गॉट इट। तो फिर अब वी नाउ कम टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगेन सेम स्टोरी। आई थिंक 2023 का मींस दे दिया आपने घर पे, फिर डिड यू टेक अ ब्रेक और डिड यू गिव कैट उसके बाद, या नहीं दिया? नहीं सर, एंड में नहीं दिया कैट। आफ्टर दैट प्रीलिम्स अगेन दैट लिम्बो पीरियड किक्ड इन, मेंस के बाद। आफ्टर दैट मेंस, या कि अब क्या करना है। तो अगेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट, क्योंकि उसमें मजा भी आता है उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। बहुत टाइम से अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ रहे हो। मैं नहीं रिलेट कर सकता यार, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं आती मैथ्स। बट सर VRC, LRD ये सब करने में इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि दिमाग यूज हो रहा था फाइनली कहीं पे बहुत ज्यादा। रटना नहीं था, पहले नहीं हो रहा था दिमाग, रटना पड़ रहा था सर पहले। इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऑफ कोर्स। इट्स रीजनिंग वर्सेस मेमोराइजेशन, इट्स वेरी डिफरेंट, राइट? तो आई से सर, अगर आप फिक्शन भी पढ़ो तो भी आपको अच्छा लगता है उस टाइम पे, क्योंकि कुछ नया है। आई थिंक वो कुछ नए वाली फीलिंग थी। It kept me going through those 2 months. I was not free. I was not thinking about what to do. And when CAT was very near, sir, I remember Forum starting residential coaching. So I got that mail because मैंने prelims की test series उनकी join कर रखी थी. So I got that mail. The mail was written in a language that I thought it was written for me. अच्छा. हाँ. It was written that if you have not cleared 2 prelims, if you don't know where you are going wrong, despite doing everything, if you are clueless, then something on those lines. So I was like, maybe this can help me. But again, देना है क्या next prelims, अभी वही sure नहीं था. At that time, again, the support of those people, the belief they give you, I think you should try this. This looks like the right place for you. वो सब हुआ. A lot of things happened, and I decided to go there. I decided to shift to Gurgaon because अभी तक क्योंकि मैंने घर से prepare किया था, with a job, I think I needed some change. तो गुड़गांव आया मैं. I quit my job. That was another risky decision. क्योंकि and sir, I think big call है यार, ये big call. उसमें help इसने की कि मैं कैट के लिए 2 महीने prepare करके I felt कि at any time if I want to leave the preparation, I'll give CAT and move ahead in the corporate ladder. So I won't join the same job again. इसलिए मैंने quit करना थोड़ा सा आसान हो गया मेरे लिए. So I shifted to Gurgaon right before CAT. कैट का एग्जाम था उससे 1 दिन पहले ही. सो दैट वाज अनदर बिग कॉल कि 2 महीने पढ़ने के बाद नहीं देता हूँ. फिर नहीं दिया आपने कैट? नहीं दिया. ओके, लेट मी गो देयर, लेट मी सी कि क्या होता है. अगेन सर उस टाइम पे भी वो डाउट बहुत ज्यादा था कि व्हाट इफ दिस इज द रॉन्ग डिसीजन, व्हाट इफ गोइंग देयर हार्म्स मी इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी. तो सर अमिडस्ट ऑल दैट केओस आई शिफ्टेड देयर. अगेन वहाँ पे एक बहुत रिगरस शेड्यूल था इनिशियली, तो सोचने का टाइम नहीं मिला, ओवरथिंक करने का टाइम नहीं मिला. एंड इन हाइंडसाइट आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन कि मैं ओवरथिंक नहीं कर पा रहा हूँ. सर वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ. एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द टेस्ट्स. एंड आई वाज नॉट श्योर कि ये हो कैसे रहा है. लाइक मैं पहले भी घर पे भी टेस्ट लिख रहा था, बट आई डिड नॉट स्कोर वेरी गुड कभी. बट वहाँ पे अचानक से लाइक आई डिड नॉट नो व्हाट चेंज्ड, बट आई स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल. आई थिंक इट्स आल्सो द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज. आप तब से पढ़ रहे हो, आपने मेंस की भी प्रिपरेशन करी, उससे एटलीस्ट वो लॉजिक और एप्टीट्यूड तो बिल्ड होता ही है. जी सर. यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चंस, राइट? कि कई चीज़ें आपको समझ आ सकती हैं कि यार ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो ही नहीं सकती, इवन दो यू हैव नॉट रेड इट बिफोर. बट सिंस यू अंडरस्टैंड ये किस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में है, किस आर्टिकल के रेफरेंस में है, तो यू नो कि यार ये शायद ट्रू हो ही नहीं सकता, या ये कभी ये तो पक्का ही फॉल्स है, राइट? तो आई थिंक दैट ऑल्सो मस्ट हैव हैपेंड इन योर केस वेयर यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस ट्वाइस टेक्निकली. अब 2 बार मेंस दे चुके हो, टेक्निकली दे चुके हो, एंड दैट्स अ बिग डील. तो वो उसके बाद होता है. एंड आई थिंक दिस पैटर्न इज वेरी एविडेंट. आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, कितना भी टफ है उनके 100+ मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो 7 दिन रिवाइज करेंगे. चाहे वो कितना, मतलब इंटरव्यू के बाद आएंगे, बिल्कुल सर, 10 दिन रिवाइज करेंगे, हो रहा है, राइट? वो लोग हैं, वो कांस्टेंट हर साल उनके 100+ आ रहे हैं. वो वही लोग हैं जिन्होंने वो नॉलेज एक लेवल पे एक्यूमुलेट कर ली है कि नाउ आई हैव गॉट दिस नॉलेज ओवर द इयर्स. दे हैव आई थिंक गॉट दैट, क्योंकि नॉलेज तो चाहिए आपको इन डेप्थ, बट वंस यू हैव गॉट दैट देन यू आर ऑल, फिर क्वेश्चन देख के आपको डर लगना बंद हो जाता है, राइट? तो वो कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर ही हैं. 75 कट ऑफ जाएगा तो उनके 100 आएंगे, 100 कट ऑफ जाएगा तो उनके 130 आएंगे. तो वो आई थिंक दैट्स वेरी 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 एविडेंट ऑल्सो. तो जब आपने फिर 2024 के प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करी, तो यू आर डूइंग वेल इन द टेस्ट. तो अब जब आप गए प्रीलिम्स देने 2024 का, वॉज दैट एंग्जाइटी देयर दिस टाइम? आई एम लाइक 2 बार यू हैव नॉट मेड इट, इस बार क्या लग रहा था एग्जाम हॉल में?
एग्जाम हॉल में घुसने से पहले तक तो थी सर एंजाइटी, आई विल से। लग रहा था व्हाट इफ अगेन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग राइट, आफ्टर वर्किंग सो हार्ड इन लास्ट 6 months, व्हाट इफ द सेम थिंग हैपेंस अगेन, व्हाट इफ आई अगेन मिस द कट ऑफ बाय 1 or 2 marks. It's a real possibility because it's prelims, you never know. तो लेकिन बट सर आफ्टर एंटरिंग द एग्जाम हॉल and after seeing the paper I felt a sense of calm around me. I think वो इसी वजह से था जो आप बोल रहे हो। आई थिंक प्लेट्यू ऑफ mediocrity जो होता है वो ब्रेक हो गया था मेरे लिए। I love this term, plateau of mediocrity. I saw this graph somewhere. I don't remember कहाँ पे, but it's like efforts you put in, but the progress that happens it goes like this, but then it breaks. So most people quit here. They don't wait till the moment it breaks. तो I think वो हो गया था, उस वजह से एक कॉन्फिडेंस था। पेपर भी रिलेटिवली इजियर था 2023 अटेम्प्ट से। आपको उस टाइम पे ये नहीं पता होता कि सबको इजी लग रहा है, आपको लग रहा होता है कि मेरे को इजी लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की है। राइट, मतलब पहले 7 क्वेश्चन किए और 7 बन गए, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ये क्या चल क्या रहा है, सही पेपर मिला है ना मुझे। उसके बाद अगले 4 नहीं बने, देन आई वाज लाइक अच्छा अब ठीक है, ये यूपीएससी का पेपर है। और बहुत सारी चेंजेस की थी अपनी स्ट्रेटजी में। नाउ आई वाज फिलिंग द ओएमआर देन एंड देयर, क्वेश्चन 1 मार्क किया, ओएमआर भरी, आगे बढ़ा, ताकि वो सेल्फ डाउट का स्कोप ही ना बचे। नो स्कोप फॉर ओवरथिंकिंग। दिस क्वेश्चन आई डिड नॉट हैव इन माइंड कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मुझे 100 ही करने थे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही उसी की थी। डेली टेस्ट दिए थे, तो आई हैड डेवलप्ड दैट व्हाट टू से, डिफरेंट टर्म्स पीपल यूज, बट दैट लॉजिकल गेसिंग एबिलिटी कि अगर नहीं आता क्वेश्चन तो कैसे उसके आंसर तक पहुंचना है। उन 4 में से ही एक तो आई थिंक वो भी है कि डरना नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे बहुत बार होता है, क्वेश्चन देखा बड़ा सा है, मान लो फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन है और मैंने फाइनेंस कमीशन नहीं पढ़ा है, तो मैं आगे देखूंगा ही नहीं क्वेश्चन में क्या है। बट अगर आपने वो प्रैक्टिस कर ली है, नॉलेज एक्यूमुलेट कर ली है, तो यू विल एटलीस्ट सी द 4 ऑप्शंस, मे बी यू आर एबल टू फाइंड समथिंग। आई थिंक वो डर आप खत्म कर सकते हो उस टाइम पे। तो दैट इज समथिंग दैट हैपेंड विद यू। जी सर। तो 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए प्रीलिम्स में, उसमें भी एक 97 के बाद मैं रुक गया था सर। अच्छा, 20 सेकंड बचे थे। अच्छा, अब मैं उस द्वंद में था अपने दिमाग में कि क्या करूं इन 3 क्वेश्चंस को। लास्ट में इन 3 क्वेश्चंस की वजह से ही रह गया, तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? फिर मैंने कहा छोड़ो यार, प्रैक्टिस ही इसी की है, जो होगा देखा जाएगा। आई प्रैक्टिस्ड फॉर दिस वेरी मोमेंट, लेट मी डू इट। और सर वो तीनों सही हो गए थे, पहले निकल के मैंने वही तीनों चेक किए थे। अच्छा, बिकॉज़ वो 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस थे। अच्छा, जिसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, सम ऑप्शंस आई हैड रेड, तो उनको उस तरीके से एलिमिनेट करके आई सॉल्व देम। उसके अलावा मैंने कुछ चेक नहीं किया, मुझे लगा इस बार तो निकल जाएगा फिल्म्स, क्योंकि जो नहीं आते 3 वही तीनों सही कर। तो इट वाज लाइक दैट, आई अटेम्प्टेड 100 लास्ट में। तो दिस इज नॉट अ सजेशन सर, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू। आई रिमेंबर सर दिस आईएएस ऑफिसर सूरज सर, वो एक टॉपर स्टॉक लेने आए थे। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई थी, आई पिक्ड दिस फ्रॉम देयर, कि मुझे अपने दिमाग में ये क्वेश्चन रखना ही नहीं था कि मैं इस पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। पेपर कैसा भी आएगा, मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, जो होगा मैं उसके लिए प्रैक्टिस करूंगा। वो चीज वहां से ली। और उनके सेशन से जो दूसरी चीज मैंने ली थी, ये सेड के मतलब उस सेशन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं शायद 6 अटेम्प्ट भी लिख दूं इस एग्जाम के। अगेन दिस गोज, क्यों ऐसा क्यों लगा? व्हाट यू टेल। ऐसा सर इसीलिए लगा बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग आफ्टर डूइंग वेरी गुड देयर इन एफआरसी, आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरा निकल जाएगा एग्जाम। आई हैव व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। अलग अलग स्टेजेस इस एग्जाम के आपकी पर्सनैलिटी में जो ढूंढ रहे हैं, मेरे पास वो चीज है, ऐसा मुझे लगना फील हो गया था। तो मेरे को बस कोई रिग्रेट नहीं चाहिए था सर। आई थिंक मैंने खुद को यही बोला था कि मैं शायद फेलियर पचा लूं, बट रिग्रेट डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा आगे अपनी लाइफ में। मतलब आई कैन नॉट से टू माई चाइल्ड बाद में कि एक और अटेम्प्ट लिख दिया होता तो तेरा पापा आईएएस बन गया होता। वो नहीं चाहिए था मुझे अपनी जिंदगी में। See, I mean, it goes against what you tell people. And I'll say it here. I don't condone this. मतलब that's just my. I mean, we can agree to disagree also. Sure, sir. I don't condone this because, and मैं आपको बता देता हूँ, मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है. I have seen many people go through this process who will not make it, but let's say they don't make it, and they will work very hard. They are capable. तो मैं उन्हें ये नहीं कहता कि आप पेपर मत दो, बट आप पेपर तब दो जैसे आपके पास बैकअप था यार। आप बीटेक कर चुके हो, आप एसएसबी में सिलेक्ट हो चुके हो, आपको पता है आपका कैट निकल जाएगा। ये बड़ी चीजें हैं, राइट? आप इफ यू कंपेयर दिस टू समवन हु प्रोबेबली डज नॉट हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, उनके लिए मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि एक बार कुछ ऐसा ढूंढ लो। तभी गवर्नमेंट एज लिमिट 32 की दी है, 25 की नहीं दी है। तो आप पहले ऐसा कुछ ढूंढ लो, उसके बाद आपका मन करे तो आ जाओ। बट मुझे लगता है वो बैक एंड पे आपको जैसे वो कॉन्फिडेंस है कि यार, जैसे लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट विल क्लैरिफाई एवरीथिंग, कि मान लो 6 अटेम्प्ट्स में भी नहीं होता, ये एक बार तो कभी ना कभी थॉट आया होगा लाइफ में, तो हो नहीं सकता कि ना आया, बहुत बार आया होगा, पॉसिबिलिटी सर, बहुत बार आया होगा ये थॉट। नहीं होता 6 अटेम्प्ट्स में, तो आप क्या करते?
मैं सर कैट देता, एमबीए करता एंड आई वुड See, गेट बैक इनटू कॉर्पोरेट. this is what I say. It's not like you need to have a backup in front of you. You need to know कि मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, and you need to be okay with that choice. Then you can give whatever time you want to here, because then your mental health is sorted. ये नहीं होना चाहिए कि बस यही करना है और नहीं हुआ तो पता नहीं. बिल्कुल सर. That is then recipe for disaster. और मैं यही बात कहता हूँ, जैसे आपको ये श्योर है कि यार नहीं होता, मैं कैट दूंगा, एमबीए करूंगा, सब सेट है, राइट? देन यू कैन गिव एज मेनी अटेम्प्ट्स, देन यू कैन गिव जब तक आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि मैंने बेस्ट दिया है. बट अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो पहले उनको ये चीज़ पता कर लेनी चाहिए, देन दे शुड कम बैक हियर. दिस इज द ओनली थिंग आई से, एंड आई स्टिक बाय इट. मतलब आई कंप्लीटली एग्री बाय दिस. आई नेवर सेड कि आपको श्योरिटी नहीं रखनी अपने दिमाग में. ऑल ऑफ माय कंडीशंस वर इन फ्रंट ऑफ पीपल. मेरे को श्योरिटी थी कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा. आई रिमेंबर सर 2023 प्रीलिम्स के बाद आपकी एक वीडियो आई थी जिसमें आपने बोला था कि एक बार बैठ के पेरेंट्स से डिस्कस कर लो, उनको बता दो कि मेरा नहीं होगा तो क्या, वो तो क्या आप सॉल्व कर लो. आई थिंक वो हो गया था, इसीलिए मैंने खुद के लिए आई थिंक वो अनसर्टेनिटी इज द बिगेस्ट फियर ऑफ मैनकाइंड, राइट? मतलब अनसर्टेनिटी हटा लो. जैसे आपको मैंने पूछा एंड आई न्यू, जैसे आप बात भी कर रहे हो कि द फर्स्ट आंसर वाज गोइंग टू बी कैट, क्योंकि आप 2 बार उसको मेंशन कर चुके हो. आई न्यू कि यार कैट ही होगा इसके बाद, मतलब अगर नहीं हुआ तो मेरे को पता है मुझे कैट देना है. दैट सर्टेनिटी takes away a lot of fear. But अगर वो certainty ना हो कि मैं दे दूंगा, नहीं हुआ तो पता नहीं, then it creates a problem. And I think that helps a lot, yeah. But sir, to add on to it, इससे there's a risk of this. इसमें एक risk भी है sir, inherent risk. Right. You will never know when your plan B becomes your plan A. Correct. Because uncertainty है बहुत ज़्यादा इस एग्जाम में. Sir, despite my फादर टेलिंग मी मल्टीपल टाइम्स के स्टेट सिविल सर्विसेज भी दे दो, मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था बाई चांस अगर मैंने उसका प्रीलिम्स निकाल दिया तो आई विल शिफ्ट टू दैट. वो मेरे से बोलते थे बस जाके दे आ, कुछ पढ़ मत. बट आई नो माई सेल्फ ना सर, मैं अगर कोई एग्जाम दूंगा तो मैं सिर्फ ऐसे जाके दे के नहीं आ सकता, बिकॉज आई डोंट लाइक फेलिंग इन एग्जाम्स. तो मैं उसके लिए पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर ये छूट जाएगा. अगेन अगर मैंने उस बार कैट दे दिया होता, एफआरसी जाने से पहले एक दिन मैं डिले कर देता गुड़गांव आना, कैट दे के चला जाता, मुझको आईआईएम मिल जाता, सर मेरे लिए रिस्की हो जाता ना उस टाइम पे डिसाइड करना कि क्या मैं जाऊं अभी छोड़ के चला जाऊं. करेक्ट. तो दैट थिंग्स कुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. करेक्ट. तो आई विल से ये एक रिस्क है इनहेरेंट जब आप प्लान भी सॉर्ट करते हो. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन. तो एक थ्रेशोल्ड एवरीबॉडी कैन फिगर दैट आउट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो ब्लाइंड वो नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं देता जाऊंगा, अटेम्प्ट फिर देखेंगे. डेफिनेटली सर. एंड मुझे ये भी लगता है दैट आपने यू कॉल्ड योरसेल्फ अ नार्सिसिस्ट, बट आई थिंक द राइट वर्ड फॉर यू इज परफेक्शनिस्ट. जो आपकी बात सुन के लग रहा है, विच इज ग्रेट, जो आपकी बात सुन के भी लग रहा है दैट यू आर aiming for that one thing, यार मैं ये करूंगा तो अच्छे से करूंगा. And I think that is that inherent ability that is required. तो जब आप उसके बाद like prelims में 100 क्वेश्चन करने के बाद prelims हो रहा था, फिर आप मेंस देने गए, मेंस में क्या हुआ? What happened in the mains? What was the experience like? First time अब आप घर से एग्जाम हॉल में मेंस दे रहे हो, तो क्या हुआ? इस बार भी सर बहुत ज्यादा मेहनत की थी मेंस के लिए, डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज एंड ऑल. सो आई डिड ऑल आई कुड डू. शॉर्ट नोट्स बना लिए थे हर सब्जेक्ट के. आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस. आपको ये चीज तब नहीं पता होती जब आप मेंस दे रहे हो, राइट, दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड. राइट. हर एग्जाम, अब सर नाउ आई विल टॉक अबाउट सम थिंग्स जो आई थिंक आई शुड से हियर. राइट, राइट. जब मैं लिख रहा था मेंस तभी मैंने सोच लिया था कि अगर सेलेक्ट हो गया तो ये चीजें बताऊंगा जरूर. राइट. हर पेपर के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ करके आया हूं मैं इस पेपर में. हर पेपर में लास्ट में 2 और 3 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे मुझसे. किसी पेपर में ऐसा हो रहा था 10 मिनट में मैं लास्ट में 3-10 मार्कर्स लिख के आया हूँ. देयर वर दोस क्वेश्चंस जो मुझे अच्छे से नहीं आते थे ऑब्वियसली, बट वही हैपेंस टू ऑल ऑफ अस. उस टाइम पे नहीं पता था सर मुझे, क्योंकि किसी टॉपर के मुंह से मैंने ये बात सुनी नहीं थी. टू बी मैंने बहुत ज्यादा देखी नहीं टॉपर्स टॉक. यू आर राइट एंड इट्स ग्रेट दैट यू आर शेयरिंग दिस. तो उस टाइम पे मुझे लगता था, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर मेरे को आंसर नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी कुछ भी लिखा आया हूँ. तो अगेन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर बाई चांस यूपीएससी टॉपर्स की आंसर शीट निकालने लगता तो सर जितना जो ग्लोरिफिकेशन है ना वो थोड़ा कम ही हो जाता. जो हम लिख के आए हैं हमें पता है हम क्या लिख के आए हैं. करेक्ट. You don't have to write 20 perfect answers to clear mains. I think वो possible भी नहीं है. To clear it very, I think आपको उसके लिए aim भी नहीं करना चाहिए. Right. Because you can't do it. Question हमेशा यूपीएससी ऐसे 1-2 डालेगा कि अगर आप उसमें परफेक्ट आंसर लिखने बैठ गए तो you leave good questions जिसमें आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं. तो I'll just give you a instance here. मैं तो खुद साइंस एंड टेक पढ़ाता हूँ. मेरे मेंस में ब्लू एलईडी आया था. कोई हवा नहीं थी मुझे कि क्या हो रहा है. ये ब्लू एलईडी मतलब ठीक है, वो दिमाग है कि आरजीबी लाइट्स हैं तो उससे कलर्स बनते होंगे, तो ब्लू एलईडी मस्ट बी हेल्पफुल इन स्क्रीन्स. तो कुछ बहुत लिख दिया था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया था. वही इस चीज की भी आई थिंक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, कि अगर ऐसा कुछ आ गया जब मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या 4 मिनट में एक डिसेंट आंसर लिख सकता हूँ. इंट्रो, डायग्राम, पॉइंट्स, कंक्लूजन,
क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि कुछ जनरल एटलीस्ट अपनी पेरिफेरल नॉलेज यूज करके कि अच्छा यार अब आपको सब ब्लू एलईडी आपको स्पेसिफिकली नहीं पता क्योंकि वो शायद 2012 का नोबेल प्राइज है, पूछा उन्होंने 22 में है, ऐसा कुछ है। तो लेकिन आप ये लिख सकते हो कि हाँ जहाँ भी स्क्रीन्स हैं वहाँ पे ये चीज हो रही है, उससे आपके एलईडी टीवीज यू हियर ऑफ देम क्वालिटी बेटर हो जाएगी, लाइक कलर कंट्रास्ट बेटर हो जाएगा। एग्जैक्टली ये पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते हो। वही सर, बट ये बात भी आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू नो। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मेंस में 20 क्वेश्चन है तो शायद 12-13 आप बढ़िया से लिख के आते हो, 3 आप एवरेज लिख के आते हो और 3-4 आप बिल्कुल ऐसे बस किसी तरह कि ये कहने को लिखा हुआ कह सकते हैं उसको। बिल्कुल सर, आई रिमेम्बर वो क्वेश्चन आया था, 3 वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज पूछी थी। अच्छा, आपके मेंस में? हाँ जी सर। मुझे नहीं पता था, मैंने जो कीवर्ड्स पढ़े थे प्रीलिम्स के टाइम पे वो याद कर करके, आई डोंट थिंक आई शुड से दिस, पर बना के लिखी थी टेक्नोलॉजी। नहीं बिल्कुल करना ही पड़ेगा, देयर इज नथिंग यू कैन डू। इट वाज माय इन्वेंशन कि भाई ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ऐसे ऐसे होके पानी प्यूरिफाई होता है। अब उसमें मेरे को नंबर मिले नहीं मिले आई डोंट नो, बट क्योंकि मुझे लगा इट मेक सेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू राइट। अब पेपर से निकल के मैं सोच रहा था कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप ब्लैंक छोड़ देते तो शायद 0 मिल, वो तो क्लियर ही है कि 0 मिलता। आपने लिखा है तो आपको शायद 1-2 नंबर मिल गए होंगे। ऑब्वियसली अच्छे नंबर नहीं मिले होंगे, आई होप नहीं मिले होंगे, राइट। आई होप दे टेक दिस वेरी, आई थिंक दे डू टेक इट वेरी सीरियसली। बट मुझे ये जरूर लगता है कि लोगों को वो 2 नंबर की इंपॉर्टेंस नहीं पता कि वो 2 नंबर आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। 2 नंबर आपके बड़े होते, मेरे 2 नंबर बड़े होते तो मेरी रैंक 250 होती और 297 है। मतलब वो 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यू कांट लीव देम असाइड। वही प्रीलिम्स में भी वही बात है, देख के नहीं समझ आया तो भागो मत, डोंट बी अफ्रेड। मेंस में भी सेम चीज़ है कि अगर देखा और लग रहा है कि नहीं यार आई नीड टू आई डोंट नो एनीथिंग, बट फिर भी जैसे आप बता रहे हो कि आपने वहाँ पे टेक्नोलॉजीज में कुछ लिख दिया, कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, पेज भर दो। राइट। अब सर इस पे भी अलग अलग लोग अलग अलग चीजें सजेस्ट करते हैं। दिस इज माय पर्सनल सजेशन, इट कम्स विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स। नाउ सम पीपल सजेस्ट कि अगर आपको नहीं आता तो डोंट ब्लफ इन मेंस। सो आई थिंक इट्स नॉट ब्लफिंग अगर आप कुछ रेलेवेंट लिख रहे हो तो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने कोशिश की हर पेज भर के आऊं, किसी पेपर में कुछ छूटे ना। राइट। एंड देन सर द ऑप्शनल डिबैकल हैपेंड। व्हाट वाज द ऑप्शनल डिबैकल? सर आई थिंक द टफेस्ट पीरियड इन माय मेंस प्रिपरेशन वाज दैट 1 वीक बिटवीन जो GS4 के बाद 5 दिन मिलते हैं। हाँ सर। इतना सर कभी प्रेशर नहीं आया मेरे ऊपर, ऑल्दो GS का प्रेशर हट चुका था, बट आई थिंक 5 दिन में पूरा ऑप्शनल रिवाइज करना इज अ ह्यूमंगस टास्क, नो मैटर आपका कौन सा ऑप्शनल है। वो तब जब मैंने हर चीज के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, वो तब जब मैं तीसरी बार पढ़ रहा था, मतलब इफेक्टिवली तीसरा मेंस लिख रहा हूँ, 3 बार टेस्ट सीरीज लिख चुका हूँ ऑप्शनल का, तब भी मुझे वो बहुत बड़ा टास्क लग रहा था। उतना मैं कभी नहीं पढ़ा शायद अपनी लाइफ में जितना उन 5 दिनों में पढ़ा था। आई थिंक वो एक प्रेशर था मेरे ऊपर। तो ऑप्शनल पेपर 1 मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाया सर। लास्ट में मेरा 40-50 नंबर का छूट गया। दिस वाज द पेपर 1 में? हाँ जी सर, दिस वाज द फर्स्ट पेपर जिसमें मैं खाली पेज छोड़ के आ रहा हूँ, अ टेक्निकल पेपर। 50 नंबर तो आपका फिजिक्स ऑप्शनल है जी सर, फॉर आवर व्यूअर्स। 50 नंबर तो इज अ लॉट, बहुत ज्यादा होता है सर, इज अ लॉट। मतलब मेरे को अगर लग जाए कि मेरा 50 नंबर का ऑप्शन छूट गया है, आई वुड थिंक माय अटेम्प्ट इज डन। हाँ सेम, आई थॉट द सेम सर। मैंने घर पे कॉल किया, मुझको नहीं बताना चाहिए था, मेरी गलती थी उस टाइम पे, बस मैं बहुत डाउन था इसलिए मैंने बता दिया। तो फिर घर वालों को भी वही लगने लगता है कि दिस अटेम्प्ट इज डन फॉर, तो वो बहुत दुखी हो गए। कुछ दोस्तों से बात हुई, वो बहुत दुखी हो गए, वो अपना मेंस लिख रहे थे फिर भी मेरे लिए दुखी हो गए। मैं सर कंसिस्टेंटली उस 2 घंटे में रोता ही रहा। आई हैड समवन विद मी, मैंने उसको बोला मेरे से बात मत करना 2 घंटे, लेट मी क्राई। 2 घंटे रोता रहा। आई वाज लाइक खत्म हो गया ये अटेम्प्ट, जाएंगे दे देंगे। बट लास्ट में आई ट्राइड टू फ्लिप थ्रू द शॉर्ट नोट्स ऑफ पेपर 2, कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ब्लर हो जा रहा था सर आंसू की वजह से, कुछ दिख भी नहीं रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा था अब तो पेपर 2 भी अच्छा नहीं हो सकता, मैं फाइनल रिवीजन ही नहीं कर पा रहा हूँ उसका। I anyway went into the exam hall with the mindset कि चलो let me try to maximize the score here। कर पाऊंगा या नहीं, you never know। ये पता था पहले पेपर में टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ हुई है तो वो नहीं होने देनी, इसमें बाकी सब देखा जाएगा। पेपर सामने आने से पहले भी सर हम दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं ना, तो याद नहीं आ रहा था कि ये डेरिवेशन कहाँ से शुरू होता है, ये तो 10 बार आ रखा है PY क्यूज में, फिर भी याद नहीं आ रहा क्या करूंगा, ये फिर से आ गया। ये सब चल रहा था, पेपर आया। उस टाइम पे माइंड गोज इन अ क्राइसिस शेल। मतलब वो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं याद आता, शायद आपसे कोई आपका एड्रेस पूछ ले तो आप ढंग से ना बता पाओ। दैट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना बिकॉज बॉडी इज रिलीजिंग सो मच स्ट्रेस हॉर्मोन्स एट दैट टाइम। यू आर इन एनी वे इन अ वेरी टेंस सिचुएशन एंड यू नो सो मच इज हैंगिंग ऑन दैट वन मोमेंट। तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। तो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स नॉर्मल, हैपेंस टू एवरीवन। बट उस टाइम पे भी यू आर थिंकिंग कि नहीं यार मुझे अब टाइम मैनेजमेंट ठीक करनी है,
दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग यू अ परफेक्शनिस्ट, कि आपने वो करके भी इन द लास्ट आपको ये थॉट आ रहा है यार कि नहीं मेरे को टाइम मैनेजमेंट बेटर करनी है अब. दैट इज आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम यू टुडे. क्या हुआ पेपर 2 में? जैसे ही पेपर और आंसर शीट मेरे सामने आई सर, सब अपने आप हट गया. Like that cloud of doubt. पता नहीं क्या हुआ. It was just me and that paper in those 3 hours. फट लिखना चालू किया. पहला न्यूमेरिकल बन गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा. एंड देन फिर वो मैं पता नहीं कैसे भूल गया, क्योंकि पेपर हाथ में आने से पहले मेरे दिमाग में सारे डिसीजंस जो अभी तक लिए चल रहे थे. क्या मैंने गलती कर दी, क्या मुझे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, ये वो व्हाट इफ लास्ट 6 months 12 months 3 years 4 years सब चलता है सब दिमाग में उस टाइम पे. पेपर आते ही वो सब हट गया. आई वाज फॉर्चुनेट. पता नहीं कैसे क्या हुआ. मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं पूजा कर रही थी इसलिए हट गया. आई एम श्योर दैट प्लेड अ रोल. राइट. तो जो भी था, जो भी रीजन था, जिस वजह से भी मैं किया, आई वाज फुली फोकस्ड इन दोस 3 hours. आई गेव माय बेस्ट. उस पेपर को मैं उससे अच्छा नहीं लिख सकता था. एक शब्द का भी नहीं छूटा. जब घंटी बजी लास्ट में, तब तक मैंने अपना लास्ट वर्ड लिखा. आई वाज सेटिस्फाइड विद दैट पेपर. अगेन, आप एक ऑप्शनल का पेपर बहुत अच्छा लिखो, तब यू विल एक्सपेक्ट के 150 आ जाएंगे. उससे ज्यादा तो आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो. राइट. पेपर 1 में आई वाज थिंकिंग कैसे भी करके 100 क्रॉस हो जाए. आई वाज होपिंग कि जो मैंने 200 नंबर का अटेम्प्ट किया वो पूरा सही हो एटलीस्ट. तो आई विल गेट 50 to 55% मार्क्स. फिजिक्स में ऐसा ही होता है, जरा पूरा सही कराओ और एक्सेप्शनल लिख के आओ तो 60% मार्क्स यू गेट. दैट इज 300 out of 500. राइट. तो आई वाज लाइक कैसे भी करके 200 में से 100 क्रॉस हो जाए और यहाँ पे 150 आ जाए. और हुआ क्या फाइनली? Finally sir, 109 I got in paper 1 and 165 in paper 2. 165 तो I think must be highest yeah. for India. Paper 2 में it's highest. Otherwise physics में तो मैं बहुत पीछे हूँ ओवरऑल, क्योंकि फिजिक्स में इस बार काफी अच्छे मार्क्स आए हैं. अच्छा. तो 300 प्लस भी आए हैं. हाँ, 4-5 लोग के. हाँ, 3-4 लोगों के. You got 274. जी सर, I got 274. तो उससे अगर चीज बनी नहीं तो बिगड़ी भी नहीं एटलीस्ट. नहीं, but I think that is a story of constant resilience, right? मतलब एक के बाद एक जो भी चीज़ हो रही है, you have just stayed resilient. कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे क्या है वो देखो. नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे क्या है वो देखो. तो अब let me come to the last 2 questions. एक है थोड़ा difficult question to address, but I want कि आप इसको address करो. After the result, you have been criticized. जी सर. Right? I want you to talk about that openly. आप पे criticism ये रहा है, देखो मैं बोल देता हूँ before you say it, कि you have taken coaching from DIAS for physics optional, from Forum in their residential program. You have taken some coaching from me for Write Smart GS3 Science and Tech Environment. I'm sure आपने और भी जगह कोचिंग ली होगी, और भी जगह टेस्ट लिए होंगे. लेकिन वो जो कमेंट्स हैं कि मतलब यू आर गोइंग एवरीवेयर, राइट, आपका जस्ट 1 minute रिप्लाई कि आप क्या बोलना चाहोगे इस बात में? Sir, the first thing I'd like to say is I understand where all of this is coming from. I understand the position those people are in who are writing these comments. They are frustrated. वो भी इसी जर्नी का पार्ट है. I was frustrated at some point of time. Maybe I was raised well enough कि मैं किसी की वीडियोस पे जाके ऐसे कमेंट ना करूं. Firstly, I hope that they get to clear this exam someday and then maybe understand the difference कि toppers talk, testimonial, podcast, motivational session, इनमें अंतर क्या होता है. Sir, people are not even willing to watch the video. They are not even willing to listen to what I said. मतलब मैं अगर for example XYZ कोचिंग के स्टेज पे खड़ा होके बोल रहा हूँ कि मैं फोरम IS गया हूँ, तो they won't pay me to say this ना. It's common sense. जैसे आप मेरे साथ खड़े होके फोरम IS का नाम ले रहे हो, तो ठीक है, मतलब इसमें क्या हो गया? At least watch it. Now the comments like टॉपर तो होते ही बिका हुए हैं, अभी से बिक गए, ये क्या देश की सेवा करेंगे, इसीलिए हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है. कुछ लेवल पे फ्रस्ट्रेशन. Has it affected your mental health? थोड़ी मोटी चमड़ी का हूँ मैं सर, तो बहुत ज्यादा तो नहीं. मेरे घर वाले भी देखते हैं कमेंट्स, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा बुरा लगता है, बिकॉज मम्मी बोलते हैं बेटा ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तूने तो कुछ किया नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं. तो तब थोड़ा सा अफेक्ट करने लगता है जब चीजें घर वालों को अफेक्ट करने लगे. बाकी सर आई हैव वेरी क्लियरली मेंशन्ड कहाँ से मैंने क्या क्या कोचिंग ली, कहाँ पे करके ली, कहाँ बिना पे करे ली. जैसे सर मैंने बोला सुदर्शन गुर्जर सर से ज्योग्राफी की क्लासेस की हैं, तो मैंने सर अनअकैडमी को पे नहीं किया. 7 दिन का जो फ्री ट्रायल देते हैं वो अपने ऐप का, उसमें मैंने ज्योग्राफी खत्म की. एंड आई मेंशन्ड दिस उनके प्लेटफॉर्म पे भी. तो आई हैव मेंशन्ड ऑल ऑफ दिस, बट दोज पीपल हु वांट टू हेट ऑन यू, वो ये सब नहीं पढ़ेंगे. उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने एक्चुअल में क्या बताया, क्या बोला. वो सर आई रेड समवेयर दैट पीपल लव टू हेट एंड हेट टू लव, एंड नाउ आई थिंक आई एम इन अ पोजीशन कि मुझे आदत डाल लेनी चाहिए. I think it's another important quality I can learn abhi bhi, how to deal with all this and still do what you're trying to do.
आफ्टर द रिजल्ट सर आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जितना भी गाइड कर पाऊँ बच्चों को, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर दिस गाइडेंस. आई हैव सीन दैट you have posted a lot of things on your Telegram channel. Like मैं देख रहा था कि आपने PYQ एनालिसिस भी डाला है, अपने नोट्स भी डाले हैं, कुछ अपनी कॉपीज डाली हैं, जो इस साल मेंस दे रहे हैं उनको एडवाइस भी दिया है, एंड इट वाज वेरी गुड एडवाइस. थैंक यू सर. मतलब तो मुझे भी लगा कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. थैंक यू सर. बट वो वही है कि आई थिंक जिनका जो माइंडसेट है, बट आई एम ग्लैड यू क्लियर दैट अप, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट दैट दिस मैसेज कम्स फ्रॉम यू डायरेक्टली. लास्ट इज द बेस्ट क्वेश्चन दैट आई वाज सेविंग फॉर द लास्ट. आपकी शायरी बहुत फेमस है, मैंने भी देखी है. तो नाउ आई जस्ट वांट यू टू एंड दिस सेशन with anything that you have written or you have read that you like a lot, which you want to communicate to everybody who is watching. Sir, I mostly write on those topics which are not relevant for this exam. ठीक है. तो जैसे That's okay. That's okay. Sir, do you have a preference, specific genre you'd like to? जो आपका मन करे. So since I talked about my mother, I'll speak. I'll recite a ghazal I wrote for her. It goes like, माँ की आंखों में देखकर सीखा है मैंने सब्र क्या है. माँ की आंखों में देखकर सीखा है मैंने सब्र क्या है. माँ खुशी से कितने गमों को पीती है खबर क्या है. तू एक आवाज लगा तो दौड़ी चली आती है वो. माँ के लिए शाम क्या, रात क्या, दोपहर क्या है. तू जब तक रहेगा उसके लिए बच्चा ही रहेगा. वो माँ की आंखें हैं, नहीं देखती तेरी उम्र क्या है. इस दुनिया की चकाचौंध में अगर भूल गया माँ को अपनी, तो मत पूछना ना समझ मुझसे अंत क्या, कहर क्या है. माँ की आंखों में देखकर सीखा है सब्र क्या है. I think that's absolutely wonderful, and thank you so much for being here, and thank you so much for being so honest. I think वो important था, and the fact that you have cleared everything up, and I think the one thing that I'm taking away from whatever you have said today is your resilience, your ability to improve, and not your narcissism but your perfectionism. कि नहीं यार मैं और बेटर करूँगा, मेरा नहीं हुआ है प्रीलिम्स में, फिर भी मैं मेंस दूंगा, घर बैठ के दूंगा, और आपने एक्चुअली दिया है. जी सर. एक कई लोग कहते हैं देना चाहिए, बट आपने एक्चुअली दिया है, विच इज़ अ ग्रेट अमेजिंग थिंग, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर मेकिंग इट, एंड माई बेस्ट विशेस फॉर यू गोइंग अहेड. Thank you so much. Thank you, Abhishek. Thank you.